Okay guys, so जो last session हमने cover किया था, like in that session what we did, we have configured one site, correct Pankaj, and the same video I have shared with Gaurav, correct? So now we have also configured the our hypervisor, which is Gen Server 01, and I have shown you how to connect Gen Server to Gen Center, which is actually GUI console for Citrix hypervisor. So if you don't know, just let me show you right here. Like we have one application which is called as Gen Center, and basically Gen Center is a tool which is used for GUI graphical presentation for Gen server. Reason is that because हमारा जो Gen server है वो Linux based operating system है and उसको हम CLI mode पर operate नहीं कर सकते, correct? So let me disconnect this from here right now. Where is the option to disconnect it? No, not here. Zen Center आपने अलग से इंस्टॉल किया है? Correct. So the problem, Gen Center is a desktop application. Okay. So it is a 45 or 50 MB application, and इस application को जब install करोगे किसी भी system में, okay, तो as you can see here, अगर मैं अभी Gen Center open करता हूँ तो this is just an application, like हम जो भी application install करते हैं ना, similar application. अभी हमें क्या करना है, हमें मैं इसको remove कर देता हूँ. Now जब install करोगे आप for first time, you will get this screen. Like in that screen you have to add your hypervisor. So you have two options. Either you can click here, add a server, or you can right click here and click on add. And now you have to enter the IP address for your hypervisor. In my case, it's standard 51. Username root होता है hypervisors के लिए for sure, and I have to enter the password for my hypervisor and just click on add. And let's wait for it. I think मैंने IP correct दिया है क्या? Let me check. Okay, sorry, it's my mistake. My IP is 10.50 and मैंने वहाँ पे 10.51 enter किया है जो कभी connect होगा नहीं. So let me change the IP address to 10.51. Username is root and जो हमारे पासवर्ड है वो hypervisor के हैं जो हमने installation के टाइम पर सेट किए थे. Okay. So now it will connect in some time. Wait for it. Oh, again I did. 10.50 है ना? Yeah, 10.51 है. sorry. Again I did some mistake. Okay. It should be 10.50. Correct. Okay, no issue. It is 10.50 root and password. Again. Now it is connected. Okay, so as you can see हमारा जो hypervisor है which is this जो हमने इधर create किया है ऐसा virtual machine. Okay, and same hypervisor हम with the help of Gen Center manage कर सकते हैं graphically. Okay, so अगर हम general tab पर click करेंगे तो general tab पे जो भी status है like server uptime and जो भी उसका ICE का जी and जो भी status है वो आप देख सकते हो. License detail you can see from here and multiple details you can see from here. Like okay, अगर हम मेमोरी टैब पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की है सो फार हमने 10 GB मेमोरी एलोकेट की थी हाइपरवाइजर को. एंड एज यू कैन सी हियर लाइक वी स्टिल हैव 8.1 GB ऑफ मेमोरी अवेलेबल. ओके, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज का जो भी डिटेल है वो यहाँ से हमें विजिबल होगा. नेटवर्किंग डिटेल्स भी विजिबल होगा, NIC होगा, कंसोल. सो कमिंग टू द कंसोल, सो कंसोल में मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ जो रूट यूजर का है. एंड after that I have to mention one command access console and after that जो सेम स्क्रीन हमें VMware पर विजिबल हो रही है that screen is visible now for Gen server. Gen center में भी हमें वो स्क्रीन. करेक्ट. सो परफॉर्मेंस पर अगर हम जाते हैं तो you can easily check the performance like what is the CPU utilization, what is the memory utilization and what is the network utilization. Okay, you all those kind of details you will get here.
यूजर्स पर अगर हम जाते हैं तो यूजर्स पर जो हमारे डोमेन यूजर्स हैं वो हम उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये L2 सपोर्ट में आता है, नॉट इन L1, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अगर हम सर्च टैब पर जाते हैं, सर्च टैब पर अगर हमारे प्रोडक्शन में मोर देन 100 हाइपरवाइजर्स हैं तो हम उनको सर्च कर सकते हैं इजिली, ओके। बट सो फार हमने एक ही हाइपरवाइजर क्रिएट किया है विच इज जेन सर्वर 01, सो सर्च करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज हमारे पास एक ही हाइपरवाइजर है जो कि सिंपली विजिबल है ऑन द स्क्रीन, करेक्ट। बट करेक्ट। इन प्रोडक्शन हमेशा 100 या 200 से ज्यादा हाइपरवाइजर्स होते हैं, तो उन केस में हमें सर्च करना पड़ सकता है, बट हियर इन आवर केस वी हैव नथिंग टू सर्च, ओके। सो नाउ as I told you, like we have already configured the site and I have already explained how to configure the site. Now what we will do, we will create a master image in our hypervisor. This is our hypervisor, and now we have to create one master image. Actually we have to create one virtual machine in the hypervisor, and what we will do, हम उस master image को ऐसा बेस इमेज कंसीडर करेंगे, एंड उस मास्टर इमेज से हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप पब्लिश कर सकते हैं, ओके। सो फॉर द सेम व्हाट वी हैव टू डू, लेट मी चेक फॉर द एसआर, इज देयर एनी एसआर क्रिएटेड? Okay, I have already created one ISO library, that is good. So now what we have to do, अगर आपको हाइपरवाइजर में कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो सिंपल तरीका है, यू कैन राइट क्लिक हियर, न्यू वीएम, और you can click here as well to create new virtual machine. So we will create one virtual machine for Windows Server 2019 operating system in right now, okay. Click on next and let me name it Win 2K19 hyphen base image. I am considering this as a base image, okay. So base image actually क्या होती है, जिस इमेज से हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, लाइक इस पर्टिकुलर इमेज में हम जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं यूजर्स को, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाल देंगे, ओके। एंड इस पर्टिकुलर मास्टर इमेज से हम 1000 ऑफ मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं एंड यूजर्स के लिए, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। Now it is asking for installation media source. So I'm going to select Windows Server 2019 ISO and simply click on next. Now, as you can see, it is showing like how much memory is available in our Gen server. So as you can see here, like so far we have 8.1 GB of RAM available, okay, out of 10 GB, which we have allocated, okay. So it is fine to install that operating system. Simply click on next. Now it is asking for memory and CPU. So far हम इस मशीन को 2 वर्चुअल CPU देंगे एंड मेमोरी is 2 GB, फाइन फॉर अस, ओके, फॉर टेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बट प्रोडक्शन में हमेशा 8 या 16 GB दी जाती है, बट we cannot afford that much of memory. Why? Because we are running short of hardware resources, okay. So simply click on next. Now it is asking for the storage. As I have told you, we are using the local storage of our hypervisor, which is Gen Server 01, and जो हमारी हार्ड ड्राइव यूटिलाइज होगी फॉर दिस, इट विल बी 32 GB, okay. Simply click on next. This will be our network adapter. Simply click on next, and this is a summary. Click on create ये जो now. सर ये जो स्पेस जो है ये हाइपरवाइजर को जो हमने प्रोवाइड किया था ये वो वाला स्पेस ही दिखा रहा है, लोकल नहीं। Correct. So as you can see here, our machine is created now, and as you can see, it will take some time to get initialized. So as you can see, it is executing the machine, and we have to press a key, and this is a simple installation like what we did in other operating system, like how we can install like Windows Server installation सबने किया हुआ, correct. So ये either जो you आईएसओ can, उठाई है इसने, ये कहाँ से उठाई है सर? ये हमने एक सर्वर ISO पे वाला। लाइब्रेरी क्रिएट की थी, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें दिख जाएगा तुम्हें, ओके। ठीक है, ठीक और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, ओके। हमने एक आईएसओ लाइब्रेरी क्रिएट की थी, एंड इस पर्टिकुलर आईएसओ लाइब्रेरी में जो भी हमने आईएसओ फाइल्स डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे दिख रही हैं, करेक्ट। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस सर्वर 2019, ओके। So as you can see, it is initializing the installation, and installation
जो है वो सेम होता है जो हम हर जगह करते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज है। इंस्टॉल नाउ एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट द पार्टीशन, एंड उसके बाद जो भी हम इंस्टॉलेशन एज यूजुअल करते हैं सेम इंस्टॉलेशन होगा। ओके, इंस्टॉलेशन में हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन बेस्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, एंड नाउ इट विल आस्क यू फॉर द टू एक्सेप्ट द लाइसेंस। नाउ दिस इज अ स्टोरेज। ये स्टोरेज हमने जो 100 GB एलोकेट की थी हाइपरवाइजर को, उसमें से out of 100 GB it will utilize the 32 GB. Okay, simply click on next, and now this is a similar installation जो हम हर जगह करते हैं, correct, and this installation will take somewhere around 15 to 20 minutes, correct, so let's wait for it. Okay, any doubt so far? आईएसओ नो लाइब्रेरी सर। से कौन सी वाली वीडियो बनाई थी आपने? जो लास्ट पार्ट 3 तो मैं शेयर किया था ना, वो वाला। उसमें 15 मिनट वाले में? हाँ, 15 मिनट वाले में करेक्ट पंकज, उसमें मैंने बताया था ना कैसे माउंट नहीं, किया। नहीं बताया उसमें नहीं सर, बताया था, नहीं वही बताया। वीडियो देखा। ओके, उसी वीडियो में। ठीक मैंने है, आपकी दूसरी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था ऐसे लाइब्रेरी क्रिएट करी थी ना, यूट्यूब पे और हाँ वीडियो में वैसे हमने देखा वीडियोस था। में होगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं पैरेलल ही बता देता हूँ कैसे किया था मैंने। लाइक जस्ट सपोज दिस इज माय फोल्डर एंड दिस इज माय आईएसओ फोल्डर। ओके, एंड इस फोल्डर को मैंने एक्चुअल में क्या किया है, इस फोल्डर को मैंने शेयर कर दिया, शेयर कर दिया। लाइक एज यू कैन सी, लाइक एडवांस शेयरिंग, इस फोल्डर को मैंने शेयर किए कर दिया एस आईएसओ। ओके, एंड इस पाथ को मैंने उठाया एंड सिंपली लेट मी क्लोज दिस, एंड अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जब न्यू स्टोरेज पर क्लिक करोगे, वो जो आपने और शेयर किया वो आपने अपने सिस्टम से किया ना, किसी राइट, सर्वर से किया नहीं बनाया होगा? सिस्टम से किया मैंने। ओके, ठीक। सर्वर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो तो और कर सकते हैं, वो तो हाँ, और यहाँ पर मैंने विंडोज फाइल शेयरिंग सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, एंड इसको मैंने नाम दे दिया आईएसओ लाइब्रेरी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, एंड सिंपली यहाँ पर मैंने वो पाथ मेंशन कर दिया था, करेक्ट। ये क्या आ रहा है, जो ये पाथ था ना, लाइक कहाँ गया, ये जो पाथ था ना वो मैंने पाथ मेंशन कर दिया था यहाँ पर, got it। दिस वन, दिस पाथ, करेक्ट। सो ये पाथ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, और जो मेरे लोकल सिस्टम के क्रेडेंशियल थे कंप्यूटर वो का। मैंने एंटर कर दिए थे, उसके Got बाद फिनिश कर दिया था। गॉट इट। अभी मैं कर नहीं सकता, अभी करूंगा तो ओवरराइट हो जाएगा। नहीं ओके, नहीं ठीक, नहीं नहीं समझ गया, ठीक। बहुत सिंपल है। अगर कभी अगर होस्ट नेम अगर रिजॉल्व ना हो पाए ना, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर आईपी एड्रेस मेंशन कर सकते हो। गॉट इट। हाँ वो तो किसी भी आ जाए। ठीक है, और अगर होस्ट नेम रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम अगर डीएनएस किसी में भी, एंट्री। सिंपली अगर हम जाते हैं यहाँ पर, लाइक अगर मैं लोकल सिस्टम की बात करूँ तो हमें सिंपली ड्राइवर्स में हम जाएंगे, देन etc, देन होस्ट फाइल, और होस्ट फाइल में जाकर के हमें वो आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में वो नाम एंटर करना पड़ता है, करेक्ट। अगर हम उसके करेक्ट जा, ये आई होप इतना तो तुम लोगों ने किया होगा पहले, यस करेक्ट। यस यस यस। जैसे कि एज यू कैन सी, अगर मुझे यहाँ पर कुछ एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने हाइपरवाइजर का आईपी एड्रेस लाइक 192.168.10.50, एंड इसके अगेंस्ट में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, जेन सर्वर -01.mydomain.com, करेक्ट। इट्स abc.com राइट नाउ। ओके, सिंपल। अगर होस्ट नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो, समझ गए। यस। सो ये तो बेसिक चीजें, ये तो तुम कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। So as you can see, installation is almost 50% completed right now, but as usual, it will take some time. Okay. So after the, basically what we are doing right now, we are creating one master image. Okay. So let me explain to you guys in simple terms. Just suppose अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीम है, हम सपोज करते हैं एचआर टीम। ओके, सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एचआर टीम है, करेक्ट, एंड एचआर टीम में 10-50 बंदे हैं। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एचआर टीम के लिए एक मास्टर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके,
एंड इस पर्टिकुलर मशीन में एचआर को जो भी सॉफ्टवेयर लगेंगे, जो भी एप्लीकेशंस लगेंगे, वो सारे एप्लीकेशंस हम इस मशीन में इंस्टॉल कर देंगे। ओके। एंड इसके बाद अगर एचआर टीम में कोई भी न्यू ज्वाइनर आता है तो हम सिंपली इस मशीन को कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ से तो नहीं होगा, मशीन एसिटिक स्टूडियो से होगा। और इस मशीन कैटलॉग को हम कॉपी करके सारे के सारे यूजर्स जो भी एचआर टीम में अवेलेबल हैं उनको सिमिलर इमेज दे सकते हैं विद सिंगल क्लिक, और जिसमें हमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर न्यू यूजर के लिए मशीन क्रिएट करने के लिए। गॉट इट? गॉट। सो इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल है, लाइक यू नो एज वी आर क्रिएटिंग, लाइक यू नो यहाँ अगर हम VMware की बात करें तो VMware हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी, करेक्ट? इन अ सिमिलर वे हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे हाइपरवाइजर में। ओके। सिर्फ थोड़ा GUI डिफरेंट है और कुछ भी टेंशन नहीं है। ओके। VMware में हम सिंपली कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग प्रोडक्शन में जाओगे, किसी बड़े डेटा सेंटर में जाओगे इन फ्यूचर, तो वहां पर तुम्हें ये नहीं मिलेगा। VMware वर्कस्टेशन कोई भी यूज नहीं करता वहां पर, करेक्ट? वहां पर बंदे डायरेक्टली हाइपरवाइजर यूज करेंगे। ओके। zen center भी यूज नहीं करते? नहीं, जेन सेंटर तो करेंगे ना, फॉर श्योर करेंगे, लेकिन VMware वर्कस्टेशन प्रो नहीं यूज करेंगे। रीजन इज दैट वो तो हाइपरवाइजर कितने टाइप के होते हैं? एनीवन हैव एनी आंसर? So, 2 type. करेक्ट। सो अगर मैं इसकी बात करूं जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, जेन सर्वर 01, इट इज टाइप 1 और टाइप 2, बता सकता है कोई? Gen Center. नो Sorry, नो, Citrix जेन Hypervisor. या ये टाइप 1 है कि टाइप It 2 is, है? I think, this is type 2 करेक्ट। एंड व्हाई इट इज टाइप 2? because we are installing multiple OS on this platform. ना, वो तो हम इस पे भी कर सकते हैं ना, Okay. वो तो हम इस पे भी कर सकते हैं, VMware वर्कस्टेशन प्रो पे कर सकते हैं ना इस पे। हाँ, बिल्कुल। सो ये तो आंसर नहीं हुआ। सर एक्चुअली पता था, बोल रहा हूँ मैं। गौरव, ओके ओके। डू यू हैव एनी आइडिया? यस सर। नो। सर एक्चुअली हम इसको किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल बेयर मेटल करते हैं इसको। Look, you can consider Citrix hypervisor as a bare metal hypervisor. Okay, so हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब हम Citrix hypervisor किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम इस पर्टिकुलर OS को ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर देते हैं फिजिकल हार्डवेयर पे। मींस हमें विंडोज सर्वर, विंडोज 10 कुछ भी नहीं चाहिए होता, समझ गए? और अगर हम टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 होता है दिस इज लाइक VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एज यू कैन सी हियर VMware वर्कस्टेशन प्रो। सो ये हमारा टाइप 1 हो गया, लेकिन प्रोडक्शन में हमेशा टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज किया जाता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। We can install the hypervisor on the डायरेक्टली physical ऑन द machine. फिजिकल Okay. हार्डवेयर। ओके, फिजिकल है, बेयर गॉट मेटल। गॉट इट? Yes, yes. सो ये बेसिक्स हमेशा क्लियर रखना, अगर कल को कोई इंटरव्यू में कुछ पूछता है ना। ओके। सो Okay. इंटरव्यू तुम्हारा तो पंकज मैच शेड्यूल अभी होने वाला है, ये ट्रेनिंग तुम्हारी कंप्लीट हो जाए। ओके। और Okay. जैसे ये शेड्यूल होगा ना, तो ये बेसिक सी चीजें, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ओके। Okay. नहीं सर, एक्चुअली मैंने पढ़ा था, कर तो हो गए 4-5 महीने पहले, और पढ़ा था पूरा मैंने। फिर दोबारा से रिवाइजन करा। करेक्ट, लेकिन कंफ्यूज उस टाइम पे नहीं होना है, समझ गए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम अटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। मीन्स हम जो मेजर टेक्निकल पार्ट है वो हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक ही कवर नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है। आई बिल्कुल। होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके। Okay. एंड गौरव, आपको भी ये बेसिक चीजें क्लियर करके रखनी पड़ेंगी हमेशा। ओके। श्योर, बिल्कुल।
So you guys are on leave today और आप लोग ऑफिस का काम कर रहे हो? No, sir, I am in office today. I've told my boss to attend for this meeting. So हम्म, नो वरीज, तुम्हारा ये ट्रेनिंग जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद आई विल टेक केयर, नॉट एन इशू। ओके, सो हमने अभी क्या किया, हमने सिंपली एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्चुअल मशीन ऐसा मास्टर इमेज कॉन्फ़िगर कर दी है ऑन आर bare metal hypervisor. Okay, so now what I have to do, I have to log into this machine and let me log in with the password जो मैंने सेट किया था. Okay, and now what I have to do, I have to perform the simple things like what? I have to join this machine into the domain and other stuff. So before that, to virtualize some applications, like what I can do here, like let me download few applications for your understanding. Like we can download a few applications. Putty. We can use Putty or other application. Okay, okay. It's I'm running out of time. I'm not sure, for one-on-one, it will never show me the prompt, but if I'm using more than 2 or 3 students, it's always show me that thing like two. For I have some restriction for 50 minutes or 60 minutes, even not sure why this is so. Anyway, so basically what we are doing, we are configuring this machine, okay, as a master image. So for the same, let me join that machine into the domain first, and let me name it as win 2k 19 base image, or I can enter it as a master image. And if we talk about the domain, in my case it's abc.com. In your case, domain might be different, so not an issue. Now it is asking for me the domain credential. In my case, it is root. Okay, so let me enter the password for root user. As you can see, now our machine is into the domain. So simply close it and reboot the machine. And let me check the download status. So what I'm trying to do here, like, we will publish that Putty application to our end users. Okay, so for the same, I have to install this Putty application into my master image. Okay, so I cannot directly copy paste that application to my master image. So for the same, I'm creating one folder here. Let's name it as a software, and I'm pasting that application here, and let me share that software, not from there, advanced sharing, then share this folder. Perfect, apply. Okay, so what I will do, I will install that application in my master image. Okay, एंड आफ्टर दैट हम जितनी भी कॉपीज मास्टर इमेज से क्रिएट करेंगे, उन सारी कॉपीज में ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होगी. ओके, सो दैट इज माय कंसर्न. सो go back here, and okay, it is rebooted now. So let me log in with the domain user. In my case, it is root. In your case, domain username may be different. Okay, so कभी confuse नहीं होना, username कुछ भी हो सकता है. Got it? So as you can see, we have created one master image, and we have already joined that image into the domain. So now I have to open that share folder, in my case dc/soft. Okay, that I have just created. Okay, so as you can see, we have got Putty installer here. Let me copy and let me paste it on the desktop,
and now I can install that Putty software. Okay, so Putty software is it is just an example for you guys. Okay, in similar way, you can install Outlook, Microsoft, or Adobe Reader, or whatever the software required for you guys. Okay, so Putty is just for an example. Got it? Any Yes, sir. doubt? No, sir. Okay. So let's wait for it to initialize the installation. Also, as I told you, I have already configured DSCP DNS roles in my this domain controller. So you can use separate servers for DSCP and DNS, no issue in that. But for personal perspective, we can configure each and everything on single machine. Why? Because we are utilizing resources for learning perspective. So in my case, as you can see, number of machines I have which are getting IP address from my DSCP scope. So in your case, it may be different. So please do not try to copy. Please utilize your own mind. And अगर कोई confusion होता है तो मुझे call आप कर सकते हो anytime. Okay? Because every infra is different. So let me close this. And so as you can see, we have got installation here. So let me install this. And wait for it. Okay guys, so कोई मुझे बता सकता है what I am doing right now? Are you installing application on the base machine Right. and trying to create a master image, base image? Right. So master image तो हमने create कर दी है, correct? But इस master image को हम यहाँ से कैसे copy करेंगे? Like delivery controller से. Aside, let me log in here again. And as you can see, हमने master image create कर दी है, correct? एंड अगर हमें उस मास्टर इमेज से एक मशीन कैटलॉग क्रिएट करना है, मशीन कैटलॉग मतलब वर्चुअल मशीन जो हम मास्टर इमेज से क्रिएट करते हैं. ओके, तो अगर हमें यहाँ पे मशीन क्रिएट करनी है तो हाउ वी विल डू दैट? लाइक अभी तो हमने सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, करेक्ट? और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं. सो लेट मी आंसर दिस. फॉर द सेम वी हैव टू यूज वन सॉफ्टवेयर which is called as virtual delivery agent. Like हम इस मशीन में जस्ट सपोज अगर आपने सारे सॉफ्टवेयर इस मशीन में इंस्टॉल कर दिए हैं जो भी रिक्वायर्ड है एंड यूजर या फिर टीम को, करेक्ट? सो नाउ हमें इस मशीन में एक एजेंट इंस्टॉल करना होगा जिसको हम वर्चुअल डिलीवरी एजेंट इंस्टॉल करते हैं कहते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कम्युनिकेट विद द डिलीवरी कंट्रोलर. हियर दिस इज अ डिलीवरी कंट्रोलर, करेक्ट? सो for the same, now what I have to do, I have to again mount Citrix virtual apps and desktop application here. And as you can see, I have to configure this machine as a master Delivery image. master No, image. master image. Why delivery? Delivery controller, we have Sorry. separate delivery controller na here. Yes, yes, yes. आपने जो This will Zen Center communicate. इंस्टॉल किया This है, will, ये जो आपने Zen Center इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया, मतलब इसमें नहीं किया, डिलीवरी कंट्रोलर में इंस्टॉल नहीं किया? नहीं, डिलीवरी ADC जो है, कंट्रोलर में क्यों इंस्टॉल करूंगा? वो तो एक सेपरेट मशीन है ना. मशीन बनाई है आपने. करेक्ट. सो एज यू कैन सी, हमें इस मास्टर इमेज को ऐसा मास्टर इमेज अभी कॉन्फ़िगर करना है. अभी तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, करेक्ट? So now again I have to select to virtualize desktop and application both, and as you can see the second option, like we have to configure this machine as a virtual delivery agent for multi-session OS. Why it is showing multi-session OS? Because we are using server operating system, correct? yes. क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल यूजर से लॉगिन एट अ टाइम करा सकते हैं, लेकिन अगर हम विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 की बात करें तो उसमें हम सिंगल यूजर एट अ टाइम ही वर्क करता है, करेक्ट? So now what it will do, it will configure the entire machine as a
master image. As you can see, we are going here to create a master image. Simply click on next, and virtual delivery agent, it will be recommended, and this is a secondary option जो हमें जरूरत नहीं है. Simply click on next. Now these are the additional components. हमें जो predefined है उनसे हमारा काम चल जाएगा. बाकी L2 और L3 पर आते हैं जो हमें as of now जरूरत नहीं है. Simply click on next. Now it is asking for delivery controller address. Why? जैसा कि मैंने बताया था कि इस मशीन को हमें कम्युनिकेट कराना है to the delivery controller here, correct? Correct. So now we have to enter the address, like in my case it's ddc.abc.com. This is my domain. I have to click on test connection. Connection is fine. Now I can click on add. Okay. So जो हमारा delivery controller था वो मैंने इस master image से add कर दिया है. Simply click on next. These are the again additional features हमें नहीं चाहिए. Simply click on next. ये पोर्ट नंबर से याद रखना पड़ेगा आपको. अगर फ्यूचर में कोई इंटरव्यू होता है तो याद कर लेना. मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा. सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट.